Hello everyone, welcome to our channel and let's start our today's discussion on Insight IS Daily Current Affair of 24th of September 2020. There are 6 topics from mains point of view that we are going to discuss, and there are 6 topics from the prelims point of view that we are going to discuss. So let's start our today's discussion from paper 2 of GS, and the topic which we are going to cover are Parliament and the state legislature, structure, functioning, conduct of business, power and privilege, and the issues arising out of this. So the first news is termination of a session. As we know that in Parliament, session can be terminated by adjournment or adjournment sine die or prorogation and dissolution. Okay, and what do you mean by then adjournment? Adjournment means it suspend the work of a sitting for a specified time, which may be hours, days or a week. Okay, if the session of a parliament is suspended for a specific time, okay, time is defined. If it is 1 day, 2 day or a particular week or hours, then we can say that it is adjournment. Then what do you mean by adjournment sine die? Adjournment sine die, if the parliament sitting has been suspended for an indefinite period. Okay, the sitting has been terminated for an indefinite period of time, that is particular specified time has been not defined, then it is known as a adjournment sine die. Okay, in another word we can say that when the house is adjourned without naming a day of a assembly. Okay, that is mean by adjournment sine die. And the process of termination in the form of a adjournment or adjournment sine die is mainly lies with the presiding officer. Okay, the presiding officer has a power to terminate the parliament either by adjournment or the adjournment sine die. Okay, and the presiding officer, as we know that the speaker is a presiding officer in Lok Sabha and the chairman is the presiding officer of a Rajya Sabha. Then next one is a prorogation. Prorogation means the president issues a notification for prorogation of a session after the business of a session is completed and the presiding officer declare the house adjournment sine die. Okay, that is prorogation means the that president used to notify about the prorogation of a session, and it is happen only after when the business of a session is completed. And prorogation also include that the presiding officer declare the house adjournment sine die, that is particular specific time when the reassembly will held is not defined. In this way we can get to know what do you mean by a prorogation. Then next one is a dissolution. Dissolution, it is only used in the term of a Lok Sabha dissolution. Okay, because Rajya Sabha is a permanent house and it cannot be dissolved. And dissolution ends the life of an existing house and a new house is constituted after the general election are held. Okay, whenever the parliament session or whenever the Lok Sabha is dissolved, then the existing house has completely end its life, means existing house completely end its tenure, and the next election member or the elected member will be constituted the upcoming Lok Sabha's members. Okay, and recently why this is news, the Lok Sabha adjournment sine die recently in what is being termed one of the shortest session of Indian parliamentary history. Okay, recently Lok Sabha has undergoes the adjournment sine die. Okay, that is specific time is not defined when the reassembly will held. Okay, and in the history of our parliament it is a shortest session. Okay, up till now there was not any shortest session. Okay, this is a one of the shortest session packed with a 25 bill. Okay, it was packed with the but in this session it was held that there were a 25 bill which were packed. Okay, which were discussed in this session. Lok Sabha productivity clocked at 167% with 25 bill passed. Okay, 25 bills were passed. 2,300 unstated questions are answered. 68% of a sitting delaying with the legislative work and 370 hour mentioned. Okay, this is the static part. It is not that important. But what do you mean by adjournment sine die? Okay, adjournment, prorogation and dissolution, these are the main topic that we have to know about this
news. The next one is from the statutory, regulatory and various quasi-judiciary body. Then it is about Central Pollution Control Board. So Central Pollution Control Board, that is CPCB, is a statutory organization, okay, and it was formed in September 1974, and it was formed under the Water Prevention and Control Pollution Act 1974, okay. It was formed under this, and it has a power and a function under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1984. Along with this, it serves as a field information and also provide technical service to the Ministry of Environment and Forest under the provision of Environment Protection Act 1968. Okay, the CPCB has to we can say that it is used to serve the field information, okay, whatever the field information or the technical assistance is provided by CPCB to Ministry of Environment and Forest under the Environment Protection Act 1986. What are the functions of this CPCB? Main functions include to promote cleanliness of streams, wells in the different areas of a state by prevention, control and abatement of a water pollution, okay. Considering the water pollution, for the promotion of a cleanliness of a streams as well as the wells is the main function of the CPCB, and it also work to improve the quality of air and to prevent, control or adapt the air pollution in the country. These are the two main important functions of the CPCB. And why it is recent in news? Because it has celebrated its 46th foundational day, okay. 46 year has over after the formation of a CPCB. Next topic is from development processes and the development industries, the role of NGO, SHGs, various groups and the association, donor, charities, institutional and other stakeholder. The news is Swachha Vidyalaya Abhiyan, and this was a scheme or this was a mission which was launched in 2014 by the Ministry of Human Resource and Development. Now we can call it as a Ministry of Education, and the main aim of this Abhiyan was to meet the Right to Education Act, according to which it is mandatory for all the schools that they should have a separate toilet for the boys and girls, okay. There should have a separate toilet for the boys and girls according to the Swachha Vidyalaya Abhiyan. And central public sector enterprises, okay, are roped to implement this program, okay. This program is implemented by central public sector enterprises, okay. According to this program, the norms required the CPSC, that is central public sector enterprises, they should build a toilet with a running water and washing hand facility, okay. The toilets should build with a running water, okay, running water facilities and the hand wash facilities, okay. And along with this, they also have to maintain, okay, the central public sector enterprises also used to maintain the toilet for 3 to 5 years, charging the expenses, okay, the annual expenses to the cooperative social responsibility budget, okay. It is charging from the cooperative social responsibility budget, okay, whatever the maintenance of the toilets for 3 to 5 years. And why it is in news? The main reason behind it is that the Controller and Audit General, that is CAG, okay, CAG is mentioned in the article number 148, okay. CAG is a independent office है उनका जो maintain करता है, ठीक है. He used to maintain the accounts and audit, okay, accounts and audit of our various department, okay. CAG का main role क्या है? He used to maintain the audits and the account of a various department, and it is mentioned in the article 148 of our Indian Constitution, okay. Then the CAG has recently submitted a report regarding the performance in this program. So the context of this news is this. And what are the key highlights? Okay, the key highlight states that
the public sector units has claimed to have constructed, okay, public sector units उन्होंने claim किया है कि they have constructed 1.4 lakh toilet, okay, 1.4 lakh toilet they have constructed as a part of a right to education project, but उनमें से 40% जो है, सर्वे करने के बाद पता चला कि उनमें से जो 40% है वो does not exist, even they does not exist partially constructed or unused, okay. Over 70% do not have a running water facility and 75% were not being maintained hygienic, okay. उनमें से जितने भी कंस्ट्रक्ट किए हैं उनमें भी 70% जो है उसमें रनिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है और 75% जो है उसमें हाइजीन का भी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सेपरेट जो टॉयलेट है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स वो भी फुलफिल नहीं हुआ है इन 27% ऑफ स्कूल अकॉर्डिंग टू द कैग रिपोर्ट। The next one is important international institution agencies and flora, their structure and mandate. The news is regarding G4 time-bound reform of Security Council. जैसे हम जानते हैं कि G4 नेशन, ठीक है, G4 नेशन में कौन कौन आते हैं? ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। मैं आपको एक मैप से दिखाती हूँ इनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। इस मैप में जैसे हमको पता है दिस इज़ द ब्राज़ील पार्ट इन द साउथ अमेरिका रीजन, ओके। हियर इट इज़ जर्मनी and here it is India and here it is Japan, okay. This is the location of this particular G4 countries, ठीक है। अभी रिसेंटली जो G4 नेशन है जिसमें हमारे 4 कंट्रीज आते हैं इंक्लूडिंग ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान which support each other by bids for permanent seat of यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो रिसेंटली ये जो 4 कंट्रीज़ है, ठीक, दैट इज़ G4 नेशंस, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते इन केस फॉर गेटिंग और एक्वायरिंग द परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। बेसिक डिमांड क्यों है इन चारों कंट्रीज़ की? ईच ऑफ दिस 4 कंट्रीज हैज़ फिगर अमॉन्ग द इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल सिंस यूएन हैज़ एस्टैब्लिश, ठीक है। जब से यूएन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है, तब से ये जो 4 कंट्रीज़ है आर द पार्ट ऑफ अ यूएन इन द form of a non-permanent members, ठीक है। Their economic and political influence has grown significantly in the last decade, reaching a scope comparable to the permanent member, ठीक है। जो भी permanent member है, ठीक है, मैं कौन से permanent member है मैं अभी ये न्यूज़ को कवर करते करते बताऊंगी, ठीक है। ये जो 4 कंट्रीज़ है इनका जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लास्ट डिकेड से देखा जाए तो काफ़ी ग्रो हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द परमानेंट मेंबर, दस दे आर supporting each other to acquire a seat in the यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अभी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? इट इज़ अ ऑर्गन है एक यूएन का, ठीक है। इट इज़ अ ऑर्गन ऑफ अ यूएन दैट इज़ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जो मेनली चार्ज करता है विद द, और वी कैन से दैट मेनली इट डील्स विद द मेंटेनेंस, ओके। किसका मेंटेनेंस के लिए? इंटरनेशनल पीस एंड द सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इशू को डील करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अभी इन कंट्रीज़ को सपोर्ट किस किस से है, ठीक है। जो यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस है हैज़ बैक्ड द G4 बिड परमानेंट सीट ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का भी सपोर्ट है इन चारों G4 कंट्रीज़ को। उसके साथ साथ जापान जो है, जापान को स्पेसिफिकली ज़्यादा सपोर्ट मिला है यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम। और जो भी परमानेंट मेंबर्स है, ठीक है, जो P5 मेंबर्स हैं, उन्होंने भी जो इंडिया को इस जो परमानेंट सीट मिलने के लिए भी सपोर्ट किया है। बट जो चाइना है, ठीक है, जो चाइना का जो सपोर्ट है इन केस ऑफ इंडिया टू गेट अ परमानेंट सीट वो उतना नहीं है। उसके साथ साथ इन केस ऑफ जापान के विरुद्ध भी चाइना है, ठीक है। तो चाइना इन दोनों को, इंडिया और जापान को सीट मिलने के लिए उतना सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। ब्राज़ील है रिसीव अ बैकिंग, ठीक है, ब्राज़ील को भी काफ़ी सारे परमानेंट मेंबर का सपोर्ट है जैसे कि फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम। अभी अपोजिशन के बारे में देखा जाए, अभी क्या क्या अपोजिशन है, ठीक है। अभी हमने देखा कि कौन कौन सपोर्ट करता है। अभी अपोजिशन देखा जाए तो देयर हैज़ बीन डिसकंटेंट अमॉन्ग द प्रेजेंट परमानेंट मेंबर रिगार्डिंग द inclusion of a controversial nation or a countries not supported by them, ठीक है। तो जो परमानेंट मेंबर्स है, ठीक है, उनका एक डिसकंटेंट रहा है काफ़ी टाइम से कि जो भी कंट्रोवर्शियल नेशन है, ठीक है, उनका इंक्लूजन इन परमानेंट काउंसिल, ठीक है। उसके साथ साथ जो जापान है, ठीक है, जापान जो है वो बहुत मतलब ज़्यादा अपोज किया जाता है बाय द चाइना, रशिया एंड द साउथ कोरिया, ठीक है।
उनका मेन रीज़न अपोजिशन का क्यों है, उनको अभी भी ऐसा लगता है कि जो एडिशनल हम बोल सकते हैं कि पश्चाताप है, जो सिविल वॉर हुआ था, सॉरी जो वर्ल्ड वॉर हुआ था जापान को, अभी भी उन्होंने नहीं लिया अच्छे से, उनका एक एडिशनल जो पश्चाताप बोल सकते हैं उसको हम, ठीक है, वो भी अभी तक बाकी नहीं हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा उन कंट्रीज़ का मानना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा मेंशन है, ठीक है, टू मेक द एडिशनल एंड एंटोनमेंट फॉर अ वॉर क्राइम्स कमिटेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। अभी अंडर द लीडरशिप ऑफ इटली, ठीक है, इटली ने भी अपोज किया है G4 कंट्रीज़ को इन द केस टू गेट अ परमानेंट सी। अभी न्यूज़ में क्यों था, अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, दैट इज़ 75th सेशन ऑफ अ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो उसमें G4 कंट्रीज़ ने काफ़ी सारे पॉइंट्स उन्होंने अपना तरफ से पुटअप किए, ठीक है, कि उन्होंने कैसे कहा है, उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि देर इज़ अ लैक, ठीक है, लैक ऑफ मीनिंगफुल, मतलब कुछ जो सॉरी देयर कंसर्न ओवर लैक ऑफ एनी मीनिंगफुल फॉरवर्ड मूवमेंट ऑन अ लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म ऑफ अ कंसिल, ठीक है, उनका मानना ऐसा है कि जो कंसिल की रिफॉर्म के लिए ना काफ़ी टाइम से जो लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म जो लाना चाहते हैं कंसिल में, अभी तक लाया नहीं है, इस बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनका कंसर्न दिखा है। उसके साथ साथ इस मैटर को बहुत जल्दी और इसकी मैटर को जल्दी हैंडल करने की मतलब एक अर्जेंसी है टू हैंडल दिस मैटर, ये भी उन्होंने पुट किया है ये डिमांड, ठीक है। व्हाट आर द डिमांड, और क्या क्या डिमांड पुट किए हैं कि जो ये G4 कंट्रीज़ है उन सबको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट डिमांड। एंड उन्होंने क्लियर उन्होंने बोला है कि देर इज़ नीड फॉर इन्हांस द रोल ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री का रोल इन्हांस करने के लिए नीड है, ठीक है, एंड जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है टू द यूनाइटेड नेशन टू मेक अ कंसिल मोर लेजिटिमेट, इफेक्टिव एंड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अफ्रीका नीड टू, ठीक है, जो अफ्रीका है उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए इन बोथ परमानेंट एंड द नॉन परमानेंट, ठीक है, जो भी परमानेंट और नॉन परमानेंट कैटेगरी में क्यों करना चाहिए, टू करेक्ट द हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ठीक है, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस उन्होंने फेस किए हैं, इसके लिए जब इतने टाइम तक वो जो थे अफ्रीका जो था वो अंडर रिप्रेजेंटेड था, इसलिए उनको दोनों सीट्स मिलने चाहिए, दैट इज़ अ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैटेगरी में होना चाहिए, ठीक है। नीड फॉर अ टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन, जो भी निगोशिएशन होते हैं उसको एक फिक्स फ्रेम में उसको सॉल्व करने का भी जो डिमांड है G4 कंट्रीज़ ने रखे, ठीक है। द मोस्ट फ्रिक्वेंट इलेक्टेड UN कंसिल मेंबर्स में कौन से हैं, ठीक है, अभी जो रिसेंटली हुआ था इलेक्शन, उस टाइम पे मोस्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कंसिल में कौन से मेंबर थे, जापान, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया, पाकिस्तान, कोलंबिया, इटली एंड कनाडा, ठीक है। अभी देखा जाए तो UNSC का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, UNSC का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें 5 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग 10 नॉन परमानेंट मेंबर एंड 5 परमानेंट मेंबर, ठीक है। एंड जो इलेक्ट फॉर द 2 ईयर, ठीक है, ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो इलेक्ट किए जाते हैं फॉर द 2 ईयर बाय अ जनरल असेंबली ऑफ अ UN। एंड जो भी परमानेंट मेंबर है वो है रशिया, UK, चाइना, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। और इन सारे जो परमानेंट स्टेट्स मेंबर्स हैं उनको वेटो पावर भी देती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द पेपर GS3 covering the topic Indian economy and issues related to the planning, mobilization of resources, growth, development and employment, ठीक है। अभी सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है सेस के बारे में, व्हाट इज़ मीन बाय सेस, ठीक है। जैसे हम जानते हैं इन जनरल एक टैक्स होता है, ठीक है, यूनियन टैक्स होता है, ठीक है, हम जैसे पता है कि यूनियन टैक्स होता है। यूनियन टैक्स मतलब जो टैक्स हमारे किसी इनकम हो या प्रॉफिट या किसी भी टाइप के ट्रांजेक्शन में लगता है, ठीक है, और ये सारा जो टैक्स है वो जाता है मेनली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, ठीक है, 3 टाइप के फंड्स होते हैं हमें जैसे पता है, ठीक है, कौन से फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है पब्लिक अकाउंट और एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो डील करता है विद द आर्टिकल 266, ठीक है, 266, और पब्लिक अकाउंट जो है वो भी डील करता है 266 आर्टिकल। एंड जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया वो डील करता है विद आर्टिकल 267, ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया मैंने दी थी। और जैसे हम पता है मैंने अभी डिस्कस किया कि यूनियन टैक्स, ओके, यूनियन टैक्स जो हमें लगता है और इट इज़ वी कैन से दैट इट इज़ कंप्यूटेड ऑन अ टैक्सेबल इनकम जो होती है प्रॉफिट या ट्रांजेक्शन में, और ये सारा कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक दूसरा होता है एक सरचार्ज, ठीक है, अभी हमें पता है कि एक होता है सरचार्ज। अभी सरचार्ज क्या है, टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक है, वी कैन से दैट सरचार्ज मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, ओके, जो भी टैक्स के ऊपर कोई एक टैक्स लगता है उसके हम बोलते हैं सरचार्ज। और थर्ड है सेस।
अभी सेस क्या है, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ अ टैक्स, ओके, कोई भी टैक्स हो वो, प्लस और अगर कहीं सरचार्ज हो, ठीक है, सरचार्ज मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स, तो सरचार्ज टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी, ठीक है, अगर सरचार्ज इट इज़ नॉट नेसेसरी वो हमेशा हो तो उसको हम बोलते हैं सेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो हमने देखा कि सेस क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ टैक्स लीव्ड और कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो ये जो होता है कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट का, और जो सेस होता है मेनली यूज़ होता है फॉर द डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस और द सेक्टर। वी कैन से दैट कि जो सेस होता है वो मेनली किसी भी एक स्पेसिफिक, ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इट इज़ चार्ज ओवर एंड अबव द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सेस कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्पज कैन नॉट बी यूज और यूज फॉर अ डाइवर्टेड फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर पर्पज, ठीक है। अगर सेस जो है, अगर हमने एजुकेशनल सेस लिया, ठीक है, तो बस जो मनी उसमें आ रहा है तो वो बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, उसको हम उस मनी को हम दूसरे किसी पर्पज़ के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेन जो फीचर है सेस का, ठीक है। इट इज़ अ नॉन परमानेंट सोर्स ऑफ ए रेवेन्यू, ठीक है। हम जो सेस को नॉन परमानेंट सोर्स बोल सकते हैं रेवेन्यू का, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए हमने अगर सेस लिया है, ठीक है, जैसे हमने एजुकेशन सेस लिया हो, तो उस पर्टिकुलर पर्पज़ को अचीव करने के बाद वो जो सेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, इसलिए हम उसको नॉन परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए जैसे स्वच्छ भारत सेज, एजुकेशनल सेस एंड मिनिमम, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सीज, अभी टैक्स और सीज के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो सेस क्यों डिफरेंट है टैक्स से, क्योंकि टैक्स जो होते हैं सच एज इनकम टैक्स, जीएसटी और एक्सरसाइज ड्यूटी, एंड वो चार्ज किए जाते हैं एंड इट इज़ चार्ज ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग टैक्स, ठीक है। और वाइल ऑल द टैक्सेस गो टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो हम पता, जैसे हमें पता है कि जो भी टैक्स होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं, एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डील विद आर्टिकल 266, ठीक है। तो ये सब जो टैक्सेस होते हैं जनरली वो जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जो सेस होता है, ठीक है, वो इनिशियली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, बट बाद में उसका जो यूज़ होता है वो पर्टिकुलर जिस पर्पज़ के लिए उसको कलेक्ट किया गया है उसी पर्पज़ के लिए वो यूज़ होता है, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली न्यूज़ में होने का रीज़न ये था कि जो कैग है, ठीक है, अभी कैग का मेरे बारे में पहले अभी इसके पहले की न्यूज़ में ही बताया कि ठीक है, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है, ठीक है, ऑफिसर्स होता है जो प्रोवाइड करता है, जो डील करता है ऑडिट और अकाउंट्स ऑफ अ वेरियस डिपार्टमेंट विद द आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कैग ने एक रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें उसने बताया है कि सेंटर रिटेन इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मोर देन 1.1 लाख करोड़ आउट ऑफ ऑलमोस्ट 2.7 लाख करोड़ कलेक्टेड इन 2018-19 थ्रू द वेरियस सेस इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग द receipt to the specific reserve fund that parliament has approved for such leaves, ठीक है। तो कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि जो 2018 और 2019 में जो सेस कलेक्ट हुआ है उसमें मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रिटेन हुआ है काफ़ी सारा जो सेस रिलेटेड जो मनी है दैट इज़ मोर देन 1.1 लाख करोड़, ठीक है। उस तो एक्चुअली कितना टोटल अमाउंट है 2.7 लाख करोड़, उसमें से सेस जो है, ठीक है, सेस थ्रू कलेक्ट किया गया मनी जो है 1.1 लाख करोड़, तो उसका जो है ट्रांसफ़र नहीं हुआ है फॉर द स्पेसिफिक जो जिस पर्पज़ के लिए वो जो सेस कलेक्ट किया है, ऐसा कैग ने बताया है, ठीक है। अभी की पॉइंट्स क्या है, ठीक है, यहाँ पे एक जस्ट स्टैटिक न्यूज़ है, जैसे हम बता सकते हैं कि जो भी सेस कलेक्ट किया है, जो मैक्सिमम सेस है, ठीक है, 1,24,399 करोड़ का जो सेस की कलेक्ट किया है ऑन अ क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल के लिए जो कलेक्ट किया है वो ट्रांसफ़र नहीं किया गया टू द डेजिग्नेटेड रिजर्व फंड टू द ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ठीक है। जो ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट को उसका जो सेस जो कलेक्ट किया है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया। उसके साथ साथ जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है उसको भी ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, ठीक है, बिटवीन द पर्टिकुलर सेक्टर और पर्टिकुलर फंड, ठीक है। अभी नेक्स्ट है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड द इश्यूज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। अभी न्यूज़ में है व्हाट इज़ नॉन पर्सनल डाटा, तो एनी सेट ऑफ अ डाटा विच डज नॉट कंटेन पर्सनलाइज आइडेंटिफिकेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी डाटा
किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन नहीं देता है उसको हम बोलते हैं नॉन पर्सनल डाटा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली एक सर्वे हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ऐसे और सर्वे जो कंडक्ट किया गया है लोकल सर्कल्स थ्रू, ठीक है, इन्होंने सर्वे कंडक्ट किया है, तो उनके सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसे फाउंड हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ जो एमएसएमईज है या स्टार्टअप्स है आर नॉट कंफर्टेबल विद द ड्राफ्ट ऑफ नॉन पर्सनल डाटा पॉलिसी, ठीक है। जो नॉन पर्सनल डाटा पॉलिसी का एक जो ड्राफ्ट आया है उससे जो बहुत सारे जो एमएसएमईज है या स्टार्टअप्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, उनको वो जो न्यू पॉलिसी है उनको पसंद नहीं है। अभी रीजंस क्या है, ठीक है, पहले हम जानते हैं कि नॉन पर्सनल डाटा पॉलिसी का ड्राफ्ट क्या बताता है, ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि क्यों उनको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो डाटा है, ठीक है, इट इज़ फ्रेम्ड, किसने फ्रेम किया है, कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स जिन्होंने ये डाटा फ्रेम किया है, ठीक है, उस कमिटी का नाम है कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन नॉन पर्सनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, एंड ये रिलीज़ की गई थी जुलाई में, ठीक है, जुलाई में ये ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था। और ये जो कमेटी है वो हेड करते हैं बाय द इन्फोसिस के जो को फाउंडर है कृष गोपाल कृष्णा, उन्होंने ये इस कमेटी को हेड करते, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन होता 2019 को हुआ था। उन्होंने सजेस्ट किया क्या कि जो नॉन पर्सनल डाटा जनरेटेड इन द कंट्री बी अलाउड टू बी harassed harnessed by the वेरियस डोमेस्टिकेटेड कंपनीज एंड एंटिटीज, ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया है, ठीक है। द कमिटी जो है वो क्लासीफाई करती है जो पर्सनल डाटा होता है उनको तीन टाइप में, तो पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा एंड प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा में। अभी की सजेशन क्या है, की सजेशन इंक्लूड है कि फॉर्मुलेट अ सेपरेट लेजिस्लेशन टू गवर्न अ पर्सनल डाटा, तो जो नॉन पर्सनल डाटा है, ठीक है, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए एक स्पेशल लेजिस्लेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ एक रेगुलेटरी बॉडी का सेटअप होना चाहिए, दैट इज़ नॉन पर्सनल डाटा अथॉरिटी, ठीक है। एंड इट ऑल्सो सेट अ सर्कमटेंसेस अंडर विच अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट कलेक्ट नॉन पर्सनल डाटा नीड टू बी रेम्यूरेटेड, ठीक है। तो जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो भी डाटा नॉन पर्सनल डाटा कलेक्ट करते हैं उसको भी उसका भी जो प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, ठीक है। अभी नीड क्यों था इस रेगुलेशन का, अभी नीड का रीज़न ये था, सबसे पहले रीज़न ये था कि हमें जैसे जानते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वर्ल्ड में, ठीक है, काफ़ी सारे डिजिटल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो डाटा जो क्रिएट होता है तो उसको काफ़ी सारे जो लोग हैं तो वो उसको एक एसेट की तरह ट्रीट करें, ठीक है। और जो बाद में उस ऑब्वियसली एसेट का हम मोनेटाइजेशन होगा और उसको इनडायरेक्टली जो है मतलब मनी को गेन करने के लिए वो डाटा का एक यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, इसलिए जो डाटा है उस पर प्रॉपर रेगुलेशन आने की नीड है, ठीक है। जो नेक्स्ट वन है जैसे हम जानते हैं इन द डाटा इकोनॉमी, ठीक है, कंपनीज विद अ लार्ज डाटा पूल हैव आउटसाइड and seize unbeatable technological economic advantages. This company have leveraged the first mover advantage to clear a large pool of a data means that a small startup are often squeezed out of the competition or देयर आर सिग्निफिकेंट बैरियर टू देयर एंट्री, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े कंपनीज है, ठीक है, जहाँ पे तो उनके वजह से क्या हो रहा है, ये जो दे यूज़ टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ अ डाटा, ठीक है, वो काफ़ी सारे जो डाटा को मतलब ले रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है जो नए जो स्टार्टअप हैं उसको कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट के लिए या उनको कहीं ना कहीं कंपटीशन से दूर करने के लिए मतलब उनका मेन एम या बहुत उस टाइप से वो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी उनका दे यूज़ टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ अ डाटा एंड दस जो भी स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जो भी स्मॉलर स्टार्टअप है वो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है उससे दूर हो रहे हैं, ठीक है। India being the second most populous country in the world, also with the second largest smartphone यूज़र बेस, ठीक है। तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन यूज़र बेस है इंडिया में, ठीक है। इसके वजह से हमें जैसे जानते हैं कि एंड दस इट इज़ अ लार्जेस्ट डाटा मार्केट इन द वर्ल्ड, ठीक है, वी कैन से दैट दस इट इज़ अ लार्जेस्ट डाटा मार्केट इन द वर्ल्ड। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स क्या है, व्हाट इज़ अ रॉबर फ्लाई, तो रॉबर फ्लाई जो है, ठीक है, वो बिलोंग करती है फैमिली एलिसिडी, ठीक है, जिसका नेम फॉर देयर फीडिंग बिहेवियर, ठीक है, उनका जो नेम गिरा है तो क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, रॉबर ऑब्वियसली किस पे बढ़ा है, क्योंकि उनकी फीडिंग बिहेवियर पे, दे रॉब अदर इंसेक्ट ऑफ देयर लाइव्स,
ठीक है, तो वो दूसरे इंसेक्ट को रॉब करते हैं, ठीक है, वो दूसरे इंसेक्ट पे उनका जो फीडिंग है वो डिपेंड करता है। लाइक ऑल ट्रू फ्लाइज, रॉबर फ्लाई हैव अ 2 विंग्स, उनको भी 2 विंग्स होते हैं बाकी जो फ्लाइज होते हैं उसकी तरह, ठीक है। यहाँ पे उसका फिगर है। अभी उसके डिस्टिंक्ट फीचर्स जो देखा जाए तो दे हैव अ हॉलो स्पेस बिटवीन देयर 2 लार्ज कंपाउंड आइज, तो उनकी जो आँख है दोनों में काफ़ी मतलब बहुत जो बड़ा एक स्पेस होता है, ठीक है। और मोस्टली ये जो फ्लाइज हैं वो मिलती है अंटार्कटिका, सॉरी वो सिर्फ सारे जो जू जोग्राफिकल एरियाज है, ठीक है, वहाँ पे मिलते हैं, बस वो एक्सेप्ट अंटार्कटिका, ठीक है। नेक्स्ट इज कृतज्ञ हैकेथॉन, तो रिसेंटली ये ऑर्गेनाइज की गई है बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज की है, ठीक है। इसका मेन एम क्या है, टू प्रोमोट जो पोटेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर इन्हांसिंग फार्म मैकेनाइजेशन विथ सॉरी विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये जो मेनली हैकेथॉन का जो मेन एम क्या है कि वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लाए इन केस ऑफ अ फार्म, और फार्म का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, फार्म में जो भी मशीन से या कोई भी जो मैकेनिज्म है रिलेटेड टू फार्म उसको इतना इन्हांस करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट को डेवलप कर पाए, ठीक है। ये पार्टिसिपेंट कौन करेगा इस हैकेथॉन में, जो स्टूडेंट्स है, फैकल्टीज़ है, ठीक है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स है या यूनिवर्सिटीज़ है, उन सब का एक ग्रुप रहेगा जो इस हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 23 सितंबर। थीम जो है साइन लैंग्वेज फॉर एवरीवन, ये सेलिब्रेट किया जाता है किसके थ्रू, इंडिया साइंस लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर थ्रू, एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एंड जो राइट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी एक्ट 2016 रिकॉग्नाइज करता है साइन लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ अ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाई अल्टीट्यूड शिंकुला टनल, ठीक है। तो ये जो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उन्होंने ये प्रोजेक्ट का जो काम है, ठीक है, उसको मतलब ज़्यादा मतलब स्पीड अप किया है, ठीक है। इसका काम को ज़्यादा जल्दी करने का सोचा है, और इसका जो काम है वो जल्दी जल्दी में स्टार्ट किया है, ठीक है। देन वो जो टनल है, ठीक है, वो 3.5 मीटर लॉन्ग है, जो कनेक्ट करने वाली है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड ट्राइबल लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश को वो कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज कुम्हार सशक्तिकरण योजना, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है ऑफ अ खादी एंड अ विलेज इंडस्ट्री कमीशन के थ्रू ये इनिशिएटिव है जो एम्पावर करेगा जो भी पॉटर्स है, ठीक है, कम्युनिटी इन द रिमोट लोकेशन ऑफ अवर कंट्री। लॉन्च किया गया 2018 में। ये प्रोग्राम जो है वो सपोर्ट करेगा जो पॉटर्स है, जो मिट्टी के पॉट्स बनाते हैं, उनको इन द फील्ड ऑफ अ ट्रेनिंग फॉर एडवांस पॉटर प्रोडक्ट, ठीक है। उनको पॉटरी जो प्रोडक्ट के लिए एडवांस ट्रेनिंग दी जाएंगी, और जो लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी है इक्विपमेंट लाइक जो इलेक्ट्रिक चक्का जो है, ये सारा भी उनको उनका भी एक सपोर्ट दिया जाएंगे, ठीक है। और मार्केट लिंकेज एंड विजिबिलिटी थ्रू KVIC एग्जीबिशन, ठीक है। इनके मतलब ये जो इनका जो पॉट से या पोट्री प्रोडक्ट है, ठीक है, पॉटरी प्रोडक्ट्स है, उसको भी एक मार्केट लिंकेज मिलने चाहिए, मिलने के लिए भी उनका जो है एग्जीबिशन रखा जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ कोमोडो ड्रैगन। तो कोमोडो ड्रैगन क्या है, एक लार्जेस्ट लिजार्ड है अर्थ पे, ठीक है, जिस दे हैव अ, ठीक है, उनके पास वेनोम ग्लैंड होता है जो कंटेन करता है टॉक्सिक, ठीक है, जो सिक्रेट करता है टॉक्सिक। और ये कोमोडो नेशनल पार्क है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो सिचुएटेड है इन द आइलैंड ऑफ कोमोडो ऑफ ईस्टर्न इंडोनेशिया, ठीक है। ये ईस्टर्न इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जहाँ पे कोमोडो नेशनल पार्क है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। जो यूएनएससी का स्टेटस देखा जाए तो एक वनरेबल उनका स्टेटस है। अभी रिसेंट में न्यूज़ में क्यों था, तो ये जो लिजार्ड है, ठीक है, यहाँ पे मैंने फिगर दिखाया, ये जो लिजार्ड है
इज़ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, तो ये जो लिजार्ड है वो एक्सटिंक्ट हो रही है ड्यू टू द वेरियस रीज़न, ठीक है, क्लाइमेटिकल चेंजेस के वजह से वगैरह, इसका जो स्टेटस है वो एक्सटिंक्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, जिसके वजह से ये न्यूज़ में था. In this way, we conclude our today's news. I hope you all like it, and please do stay connected. Have a nice day. Thank you.